ناظرین، پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی علاج دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اس کی بدولت جنسی خود غرضی کا شکار ہیں۔ ناظرین، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل شروع کب ہوا؟ اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے؟ اور یہ کہ آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بات کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں استعمال ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ ناظرین، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھیں۔ صلیبیوں کی فوج کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر قیانوس کے ساحل پر 15 لاکھ صلیبی جنگجو لاشوں کا ڈھیر کر دیے۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بنا دیتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ رلیوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی ایک انٹیلیجنٹ آفیسر بھی موجود تھا۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت ہی شاطر اور بہت ہی ذہین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوانوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاش پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا۔ خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں، ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رعنائیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، مگر ہماری خوبصورت عورتوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر بنایا تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں
क्योंकि हम उनके अंदर औरत और जिनसियात की रूह दाखिल कर चुके हैं। अगर यही हर बात पूरी मुसलमान फौज पर आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवान के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज होगी और वो इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। नाजरीन, हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया और कहा कि हमने मुतअद्दिद बार खूबसूरत औरतें मुसलमान अफवाज में दाखिल की हैं। इस काम में हमें शदीद तकरीब कारी भी करनी पड़ी, मगर मुसलमान फौज इन हसीन औरतों की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं करती और मुतअद्दिद औरतें मुसलमान फौज का किरदार देखकर सलीबी हिमायत छोड़ चुकी है। लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम है। हरमन ने फौरी तौर पर जवाज पेश की, जब तक आपके अंदर किसी चीज का तसव्वुर मौजूद ना हो उसका होना ना होना बेमानी होता है। हमें मुस्लिम फौज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, ऐसा तसव्वुर जो उनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। उसके बाद वो खुद को हमारी सकाफत के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी ईजाद होगी। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? नाजरीन, मुर्खीन लिखते हैं, हरमन ने निहायत ही शातिराना अंदाज में तारीख का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से दुनिया के सामने आया। इस मंसूबे के एक साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इत्तला मिली कि फौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस चीज को इतनी संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदल कर उन नौजवानों का पीछा किया। यहाँ एक बात वाज़े करता चलूं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बाज़ात खुद भेस बदलने और आवाज़ बदलने के माहिर थे। तारीख में मुतअद्दिद बार उनकी एक दूसरी शख्सियत के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रिवायत मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलीबी आला अफसरान को सुल्तान के सामने पेश किया गया तो सुल्तान ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स को तुमने कहा था कि अयूबी को मैं उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो शख्स कौन था? वो सलीबी अफसर बोला, हुजूर वो एक अरबी ताजिर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान को तकता रह गया। नाजरीन, फौज के कुछ नौजवानों की पुरअसरार हरकतों पर सुल्तान सलाहुद्दीन उनके पीछे गए तो मालूम हुआ कि फौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफिला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन उनके पास फुहश तस्वीर हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वो तस्वीर देखी तो हैरान रह गए। उनमें ऐसी मंजर कशी की गई थी कि कोई भी नौजवान सेक्स के लिए जुनूनी हो सकता। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को दमिश्क और मिस्र के दीगर शहरों से भी इतलाआत मिली हैं कि शहरों में फुहश तस्वीर के कुबाह खाने खुल गए, जहां जिनसी इश्तियाल इंगेज तस्वीर दिखाई जाती हैं और नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। इसके साथ ये भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेजी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी तौर पर अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान ने एक तारीखी तकरीर भी की। उन्होंने कहा कि हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार होता है। दुश्मन हमारी असल ताकत का अंदाजा लगा चुका है, अब वो सामने नहीं आ सकता, इसलिए दुश्मन अब हमारे कौमी किरदार पर हमला आवर हुआ है।
क्योंकि जरूरी नहीं जंग सिर्फ मैदानों में हो, जंग सोच और रवैयों की भी होती है। नाजरीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस ज़ाहिर कातिल को मारने की बहुत कोशिश की, मगर इस मसले का पूरी तरह इदराक ना हो सका, क्योंकि इस जहर के असर को देखते हुए हसन बिन सबा के फिरके ने इसे बतौर हथियार अपनाया और सलीबियों से इस आर्ट ग्राफी की नई जिद्दतों पर मांग की। यूं हसन बिन सबा की पहाड़ियों में बनाई हुई पुरअसरार जन्नत में एक और हथियार का इजाफा हुआ और इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मक़दस की फतह के बाद चल बसे। सलीबी अपना दमखम खो चुके थे, मगर उनका तैयार करदा ज़ाहिर पोर्नोग्राफी मुसलसल फहाशी के जरासीम फैलाता रहा। नाजरीन, यूं सदियां बीत गईं, जमाने के रंग ढंग बदल गए और कई सकाफतें आईं और मिट गईं। बिल आखिर 18वीं सदी का सूरज तलू हुआ। 18वीं सदी के शुरू में एक बार फिर पोर्नोग्राफी पर काम शुरू हुआ। इस बार इस काम के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। लकड़ी से जिनसी औज़ा बनाए गए और फ्रांस में हुए एक तमाशे में लोगों का हुजूम आ गया। लोग जोक दर जोक लकड़ी से बने हुए जिनसी औज़ा को दिलचस्पी से देखने लगे। इन औज़ा को देखकर पहली बार लोगों में आज़ाद ख्याली पैदा हुई, लिहाजा लोगों की दिलचस्पी देखते हुए अमेरिका, फ्रांस और लंदन में छोटे छोटे पॉर्न हाउस खुल गए। जो एक छोटा सा जंगल होता था, जंगल में पोर्नोग्राफी की तस्वीर दरख्तों पर लटकी हुई होती थी। नाजरीन, सन 1839 में कैमरा ईजाद हुआ तो उस ईजाद ने जहां साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा जादू किया, वहीं पोर्नोग्राफी का एक अहम हथियार बन गया। सन 1876 में वीडियो टेक्नोलॉजी के वजूद में आते ही पहली बार यूरोपीय ममालिक में फिल्म साज इंडस्ट्री का इब्तदाई ढांचा बनना शुरू हुआ। इसके साथ ही तारीख में पहली बार पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री का आगाज हुआ। पहली फोहश फिल्म 1895 में रिलीज हुई। 1920 तक यूरोपीय तहजीब इस जहर में मुकम्मल तौर पर डूब चुकी थी। आवाम सरेआम सड़कों को बेडरूम बनाए अपना शौक पूरा करने लगी। साहिल समंदर अयाशी के अड्डे बन गए। मियाँ बीवी एक दूसरे की जिम्मेदारियों से दूर भागने लगे। सन 1970 में पोर्नोग्राफी का जहर बरे सगीर में दाखिल करने की कोशिश की गई। पहले ये जहर सिर्फ तस्वीर पर मुश्तमिल था। ऐसी वीडियोस दिखाने के लिए यूरोपीय कंपनियों ने पाकिस्तान और भारत में पॉर्न सिनेमा हाउस खोलने की इजाज़त चाही। इसके जवाब में सिर्फ इनकार ही नहीं किया गया, बल्कि इसे एक जुर्म करार दिया गया। मगर 1980 में वीसीआर टेक्नोलॉजी बरे सगीर में आम हुई तो लोग वीसीआर की तरफ मुतवज्जे हुए। इसी दौरान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी शान से उभर कर सामने आ गई। यूरोपीय कंपनीज ने जब एशियाई लोगों का वीसीआर की तरफ रुझान देखा तो उनकी आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। यूं फोहश फिल्में पाकिस्तान और भारत में ब्लैक होकर बिकने लगी। सन 1995 में पीटीसीएल ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए खरीद लिया। सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी अवाम में मकबूल होना शुरू हुआ तो इसके साथ ही पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फलंगता हुआ दाखिल हुआ। यूरोपीय पॉर्न फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा प्रॉफिट एशिया से मिलती है। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक 90 लाख पाकिस्तानी रोजाना पॉर्न साइट्स का विजिट करते हैं, जबकि भारत में 6 करोड़ लोग रोजाना फोहश फिल्में देखते हैं, जिससे पॉर्न इंडस्ट्री के मालिक रोजाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाते हैं। ये वो तादाद है जो साइट्स ब्लॉक होने के बावजूद भी किसी न किसी तरह सार्फिन तक पहुंच जाती हैं, जबकि गूगल पर फोहश तस्वीर देखने वालों की तादाद पाकिस्तान और भारत में करोड़ों में है।
اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کے لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ اسلام کی افرادی پاور 2050 تک پورے یورپ میں حاوی ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر مغلوب کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے جیسا آزاد معاشرہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلام کی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں اور سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ ان کا ہتھیار ان کی قوم کو ختم کر چکا ہے، لیکن جاتے جاتے مسلمان پر آخری وار ضرور کرتے جائیں۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی، دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔